Good morning, everyone. Today we are going to study the history fourth chapter of class 6, the first cities. In last class of the first cities, we study about the main features of the Harappan cities, Harappan civilization, and society, economic life, food, occupation, etc. In this class, we are going to study about the other main features of the Harappan civilization, art and culture. No massive structure like the pyramid of ancient Egyptian civilization have been found in the Harappan site. However, archaeologists have discovered a number of smaller statues and figures made of terracotta, stone, and metal. The detailing in this statue show how skilled the Harappan people were are as artists. The Harappan people made a variety of pots in different shapes and sizes using the potter's wheel. Script. The Harappan people had a script, but historians have not yet been able to decipher it. The script is pictographic. Nearly 4,000 signs have been identified till now. Scholars believe that the script was written from right to left. Religion, nature worship, including the worship of trees like the people and animal like the bull, and the worship of the mother goddess, seem to have been practiced. Decline of the civilization. After flourish for thousands of years, the thriving Harappan civilization appear to have come to a sudden end around 1900 BCE. Many possible causes suggested by archaeologists are natural disasters like earthquake, change in the course of river, and repeated flood and drought. Human-made causes like overgrazing and widespread deforestation leading to a decline in the quality of soil and increased aridity. Collapse of trade with other civilizations like Mesopotamia. Falling trade would have meant less work for the traders, craftsmen, and farmers, and falling income. Some historians suggest that toward the end of the Harappa civilization, the people started moving southward and established a small settlement. Many of these practices become a part of the Indian culture in the year to come. चौथे अध्याय में के अंत में हम हैं जो कि हिस्ट्री के चैप्टर 4 के बारे में जो क्लास 6 का है उसके हम मुख्य विशेषताओं के बारे में देख रहे थे। उसमें से एक और है आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो नहीं मिला, जैसे कि पिरामिड जो इजिप्ट में मिले थे और इजिप्ट की सभ्यता के बारे में दिखाए थे, ऐसा कोई हमें यहाँ पे खुदाई में कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पे खुदाईकर्ता को कई छोटे स्टैचू जरूर मिले हैं जो कि टेराकोटा और पत्थर के और कुछ तो धातुओं के बने हुए मिले हैं, और ये दिखाते हैं कि वहाँ के लोग जो है कितने कुशल थे, मूर्ति बनाने में कलाकार थे। साथ ही साथ यहाँ के लोग जो है कई प्रकार के बर्तनों को भी बनाया करते थे और अलग अलग प्रकार में, अलग अलग शेप में, और साइज भी उनका अलग अलग हुआ करता था। स्क्रिप्ट, हड़प्पा के लोग जो है लोगों का स्क्रिप्ट तो मिला हुआ है, लेकिन आज तक इतिहासकार उसको सक्षम नहीं हुए हैं कि उसको पढ़ सकें। इनका जो स्क्रिप्ट है वो खास करके पिक्टोग्राफिक है। इसमें से करीबन 400 साइन जो है आज तक पहचाने जा चुके हैं, और स्कॉलर ये मानते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो दाहिने से बाएं की ओर लिखी हुई है। रिलीजन, हड़प्पा के लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पे पूजन में पेड़ पौधे जैसे पीपल और कुछ जानवरों जैसे कि बैल
का ये पूजा करते थे। एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि देवी के रूप में प्रतीत होती है, उसका भी पूजा का संकेत मिलता है। इस सभ्यता का खत्म होने के साक्ष्य। इतना ज़्यादा उन्नत सभ्यता जो हजारों सालों से चलते आ रहा था, वो अचानक से इस सभ्यता का अचानक से अंत होता है 1900 बीसीई में। कई संभव कारण जो है इतिहासकारों की तरफ से बताए गए थे। कुछ का कहना है यहाँ पे प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आई होगी और नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया होगा, और यहाँ पे लगातार बाढ़ और सूखा आने के कारण भी यहाँ पे पतन हो सकता है। कुछ का कहना है कि मानव के द्वारा जो किया गया ओवरग्रेजिंग और डिफोरेस्टेशन है, उसके चलते जो है यहाँ के मिट्टी की जो उपजाऊ बन क्षमता जो थी वो खराब होने के चलते यहाँ पे शुष्कता आती गई और यहाँ के लोग चल बसे। कुछ का कहना है कि यहाँ पे इनका जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया से खत्म हो जाने के कारण, जो कि आधा दूसरे से खत्म हो जाने के कारण लोगों के पास आय का कोई स्रोत न रहा, इसलिए भी ये सभ्यता लुप्त हो गई। कुछ इतिहासकार ये भी सुझाव देते हैं कि जब यह सभ्यता अपने अंत पे थी, तब यहाँ के कुछ लोग जो है वहाँ से निकल कर दक्षिण और दक्षिण की ओर चलते जा रहे थे, और जाके वहाँ पे अपने छोटे छोटे अधिवास बनाए, और उसमें से बहुत से लोगों को माना गया कि भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते हैं, तो शायद आज वो यहाँ पे रहते होंगे।